Very good morning, students. I'm Pragati, your psychology teacher, and today we are going to discuss about the endocrine system. The endocrine system play a very important and crucial role in our development and as well as in our behavior, because it is the gland which is being a chemical substance consists of a specific chemical substance which are known hormones. So these glands secrete that hormones in our body which control different kind of our functions, and these different functions is being responsible for the development of the body as well as for the behavior. So that which we are going to study about the endocrine system. First of all, I want you to see this diagram which you have been studied in your biology class of 9th or 10th. It is about the major endocrine glands, the glands which are related with the different functioning, and this functioning which we are going to study in this about the pituitary gland, about the thyroid, about the pancreas, about the adrenal gland, ovary in the females, and testes in the male. So we are going to understand each gland function, what it is and how it has been affected for the behavior. Okay, so first of all we need to understand that what the major endocrine gland is all about. These are the endocrine glands which form endocrine system of the body. Okay, so it forms an endocrine system of the body, and this are the different parts of the glands are responsible for with the nervous system. Okay, and the nervous system have been working over it. This whole system is thus known as neuroendocrine system. So 1 mark solution, you need to point out a mark in your book that what is known as, why it is known as a whole system which is known as neuroendocrine system, why it is. Okay, the nervous system is also which is been relate with the glands is also known as dash endocrine system. Then you have to write neuroendocrine system. Okay, moving over the first gland, that is pituitary gland. Okay, the pituitary gland is the gland which is also known as master gland. Why it is master gland? Because it is the major gland which has been responsible to find out or to you for the development of the body. The growth hormone has been secreted from here, other kind of hormones have been regulating the body. Okay, so the gland is situated within the conjuring and just below the hypothalamus. We have studied the brain diagram just below that. If you can see, this is the pituitary gland. Okay, now coming over this, that the pituitary gland is divided into anterior pituitary and posterior pituitary, 2 times anterior and posterior. So this also your 1 mark question, that the pituitary gland is divided into dash and dash. So the enteroid pituitary is directly connected with the hypothalamus. Okay, जो हमारी एंडोरियन पिट्यूटरी है वो हाइपरथैलेमस से रिलेट करती है. क्यों? क्योंकि वो हार्मोनल सिक्रीशन को रेगुलेट करती है. और जो हमारी दूसरी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है वो क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती है, इसलिए मेजरली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और बहुत अदर भी हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, डायरेक्ट करती है, एंड ऑल्सो इट वर्क अप विद द थिंग कि भी हमें कौन सा हार्मोन कहाँ पे चाहिए. सो this is why pituitary gland is known as master gland. Here you can get a 1 mark question, the 2 mark question, that why pituitary gland is known as master gland, because it this gland directs and regulates the secretion of hormones and also manage the hormonal system of the body. That is why it is known as master gland. Okay, moving over the thyroid. If we talk about the thyroid, this is just an example of the pituitary gland given above. So you have to just read through it, that the some hormones are secreted at a steady and rate thousands of time, and these are being अप्रोप्रिएटली टाइम ऑफ लाइफ के हिसाब से वो चेंज होती है. जैसे ग्रोथ हार्मोन है वो लाइक स्टेडली एक टाइम के लिए इन योर चाइल्डहुड,
वेयर एज स्पर्ट ड्यूरिंग एडोलसेंस, स्पर्ट हार्मोन है जो कि एडोलसेंट पीरियड में रिलीज होता है। फिर है जेनोट्रोफिक हार्मोन जो कि सिक्रीट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, एंड देन दिस स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एप्रोप्रिएट सेक्स हार्मोन अमंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो कि आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शुअल चेंजेस में प्लेस करता है, ठीक है, या फिर जो चेंजेस लेके आता है बॉडी में। नाउ कमिंग ओवर द थायराइड ग्लैंड, इफ यू टॉक अबाउट द थायराइड ग्लैंड, this gland is just located in our neck, okay, and this produces as thyroxine the influence the body metabolic rate। ये जो हमारा बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है उसे थायरॉक्सिन जो है वो इम्पल्सिवली वर्कआउट कराता है, तो ये हमारा रेट इसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। ऑप्टिमिज्म अमाउंट ऑफ थायरॉइड्स इज सिक्रेटेड, एक ऑप्टिमिस्टिक जो है अमाउंट होता है जो कि सिक्रीट करता है और रेगुलेट करता है, ठीक है, और हमारे जो ये पिट्यूटरी हार्मोन्स है इन्हें रेगुलेट करता है, और इट इज़ नोन एज थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि नोन एज क्या है, TSH शॉर्ट फॉर्म। तो फुल फॉर्म ऑफ TSH पूछा जा रहा है 1 मार्क्स में, तो यू कैन से दैट थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। द स्टेडी सिक्रीशन, इसका स्टेडली जो सिक्रीशन है वो विच इज फॉर व्हाट इट इज़ बिन रिलेटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ओके, कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, eliminatory waste of the body cells. Then on the other hand it is also related for your physical and psychological lethargy, means for your psychological and physical functioning. This thyroid gland removes in the young animals for their growth and to stimulate the field of development sexuality। अगर जो यंग एनिमल्स होते हैं उसमें इसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो उससे क्या होता है उनकी ग्रोथ में इम्प्रूव जो है स्टॉप हो जाती है, और इट फेल्स टू डेवलप सेक्सुअलिटी, वो सेक्सुअलिटी भी डेवलप नहीं कर पाते, ओके। कमिंग ऑन एडर्नल ग्लैंड, if we talk about the adrenal gland, this gland has 2 parts and it's like of the kidney, and it has 2 parts that is known as adrenal cortex and adrenal medulla, adrenal cortex and adrenal medulla, okay, each secretion different hormone। adrenal medulla और adrenal cortex दोनों अलग अलग हार्मोन रिलीज़ करते हैं। अगर हम एडर्नल कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो इट रेगुलेट योर एड्रोनो कॉर्टेक्स ट्रोफिक्स हार्मोन और एड्रीनो ऑर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये सिक्रीट करता है आपके एंटीरॉयड पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, इंटीरियर जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें सिक्रीशन करता है। और व्हेन द सिक्रीशन ऑफ द एडर्नल कॉर्टेक्स इज goes down to the enteroid pituitary gland, then it gets the message to increase the secretion of ACTH जो मैंने आपको ऊपर बताया, okay, and which stimulates the adrenal cortex to secrete more hormone। तो फिर वो adrenal cortex को कहते हैं कि और हार्मोन रिलीज करो, ठीक है। तो क्या है, सिंपल बात है, आपका है सिक्रीशन ऑफ एडर्नल कॉर्टेक्स जो है वो रेगुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एंड्रॉयड पिट्यूटरी ग्लैंड के, जिसका नाम है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और उसके बाद आपको वो जो है मैसेज देता है एंड्रॉयड पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आपको ACTH के अमाउंट को बढ़ाना है। अब एडर्नल कॉर्टेक्स जो है वो सिक्रीट्स करता है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को, जैसे हम कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। व्हाट? कॉर्टिकॉइड्स जो है ये यूटिलाइज करते हैं बॉडी में नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल पर्पसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे आपकी बॉडी में पोटेशियम है, क्लोराइड है, सोडियम है, पर्टिकुलर मिनरल्स है बॉडीज़ में, तो उन सबको रेगुलेट करते हैं कि किस अमाउंट में क्या चीज़ चाहिए, और कोई भी चीज़ आपकी सीरियसली कोई इफ़ेक्ट ना करे, नर्वस सिस्टम को, फंक्शन को सीरियसली इफ़ेक्ट ना करे, डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन से वाले? एडर्नल कॉर्टेक्स के, जो ये हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, और इन हार्मोन्स का क्या नाम है? कॉर्टिकॉइड्स, ओके।
Moving on, after the adrenal glands, the second part that is known as adrenal medulla. एडर्नल मेडुला क्या होता है? ये भी दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं. इसे कहते हैं एपिनेफ्रिन एंड न्यूरोफ्रिन पाइनफ्रिन. ओके, न्यूरोपाइनफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन. तो एपिनेफ्रिन और न्यूरोपाइनफ्रिन क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज एड्रेनालाइन एंड नोरोड्रेनालाइन रिस्पेक्टिवली. एपिनेफ्रिन को एड्रेनालाइन कहते हैं और न्यूरो को नोरोड्रेनालाइन भी कहा जाता है. इनके सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से क्या होता है कि हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है, या ऑक्सीजन हमें कितनी कंजम्पशन करनी है, हमारा मेटाबॉलिज्म रेट कैसे वर्क करेगा, मस्कुलर टोन क्या रहेगी, एवरीथिंग इज़ बीन वर्किंग ओवर दिस. ओके, तो टेकिंग प्लेस थ्रू द सिक्रीशन ऑफ दीज टू हार्मोन्स, मतलब इन दो हार्मोन्स के सिक्रीशन से हम रिलेट करते हैं. इन दो ही स्टिमुलस जो है वो स्टिमुलेट करते हैं हमारे हाइपोथैलेमस को, विच प्रोलॉन्ग इमोशंस, जो हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इंडिविजुअल इमोशंस के लिए, और जो हमारी बॉडी में से स्ट्रेसर्स हैं उसे रिमूव करती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उसको रिमूव करने में इंडिविजुअल्स में हेल्प करते. मीन्स चाहे वो ह्यूमन बीइंग है चाहे वो एनिमल है, सब पे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कौन? एपिनेफ्रिन एंड न्यूरोफ्रिन. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ये स्ट्रेसर्स को रिमूव करने, स्ट्रेस को क्या प्रोलॉन्ग करते हैं? इमोशंस को. ठीक है, सो दिस पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर. नाउ कमिंग ओवर द पेनक्रियास. हमें सबसे इजीली पता है पेनक्रियास खराब होती है तो डायबिटीज़ होती है. इसका मतलब क्या हुआ? पेनक्रियास जो है वो एक हमारे डाइजेशन फूड के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जिसमें वो एक हार्मोन को रिलीज़ करती है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन. इंसुलिन जो है वो लीवर को ब्रेक डाउन, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती हैं, और हमारी बॉडी को और फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन जो है बाय द लीवर उसके में हेल्प करती है. जब इंसुलिन जो है वो सिक्रीट नहीं हो पाती एक प्रॉपर अमाउंट में, तो पीपल डेवलप अ डिजीज़ कॉल्ड डायबिटिक मेलिटस और सिंपल डायबिटीज़. ठीक है, इसमें दो तरह की डायबिटीज़ होती है. एक जिसमें आपकी डायबिटिक इंसुलिन लेवल्स जो है वो वेरी हाई हो जाती है. ओके, और एक सिंपल जो कि जिसमें आपके डायबिटिक लेवल्स जो है वो लो हो जाते हैं. दीज आर द टू डिफरेंट डायबिटीज़ जो कि आपको लेटर ऑन स्टडी करवाई जाएगी. सो दैट नाउ यू नीड टू नो कि पेनक्रियास का जो ग्लैंड है वो क्या काम करता है. Now we have been talking about the most important, that is gonads. Gonads are refers to the testes in male and ovary in females. So हमारा जो प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का जो वर्क होता है वो इनकी हेल्प से होता है. ठीक है, किन की वजह से? गोनाड्स की वजह से. ये हमारी जो मेल्स है उनमें टेस्टीज होती है और ओवरीज जो है वो फीमेल में होती है. ये जो हार्मोन है सिक्रीट करता है, ग्लैंड्स कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है हमारे ये सेक्सुअल बिहेवियर को, जो भी हमारा सेक्सुअल बिहेवियर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, और रिप्रोडक्शन के फंक्शंस में मेल्स और फीमेल्स में हेल्प करता है. इसका सिक्रीशन ऑफ हार्मोन जो है वो इनिशिएटली मेंटेन किया जाता है और रेगुलेट होता है हार्मोन, जिसे हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GTH. तो शॉर्ट फॉर्म्स हमेशा याद रखने हैं. सिक्रीटेड बाय द किसके द्वारा होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रीट होते हैं. ओके, और ये जो है इसका सिक्रीशन जो है वो प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होता है. मीन्स द एज ऑफ 10 to 14 ईयर व्हेन वी बिकम एडल्ट, व्हेन वी बिकम मैच्योर, एट दैट टाइम इसका सिक्रीशन स्टार्ट होता है. एंड द स्टिमुलेट्स द गोनाड्स टू सिक्रीट हार्मोन्स. ये हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, और जिसमें इट ट्यून्स टू स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं. जैसे प्राइमरी सेक्सुअल क्या आती है कि जब आपकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं,
बॉयज़ में, गर्ल्स में, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड लेटर ऑन सेकेंडरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब आपकी बॉडी कम्प्लीटली मेच्योर हो जाती है एंड यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस अ न्यू चाइल्ड, अ न्यू लाइफ फ्रॉम यू, सो वो सेकेंडरी कंसीडर किए जाते हैं। तो ओके, अब कमिंग ऑन द ओवरीज इन फीमेल, वो जो प्रोड्यूस करती हैं वो उसे हम कहते हैं ऑस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन। ये जो एस्ट्रोजन्स है वो हमारे को सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं फीमेल बॉडी की। प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स रिलेट करते हैं हमारे रिप्रोडक्शन से, जो कि है आप डेवलपमेंट होती है ओव्यूम में, या फिर आप कह सकते हो एग सेल में। ये 28 डे की साइकिल होती है जिसमें ओवरी जो है वो सेक्सुअली मैच्योर होती है फीमेल्स में, और इसमें मेंस्ट्रुएशन इसे नाम दिया जाता है। देन द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो है ब्रेस्ट डेवलपमेंट की, या राउंड बॉडी कॉर्टेक्स की, या वाइड पेल्विस की। तो ये सब जो है हमारी डेवलपमेंट होती है। ये आपको बायोलॉजी की टीचर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, बट द मेजर थिंग्स विच आर देयर आई एम एक्सप्लेनिंग यू। ओके, तो ये डेवलप होती हैं, डिपेंड होते हैं आपके हार्मोनल चेंजेस पे। तो एज के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं कि हर एक में ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऊपर नीचे एज डिफरेंस आ सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। पर जो हमारी बेसिक एज है वो 10 to 14 ईयर का टाइम होता है जब ये डेवलपमेंट चेंज लेती है, टेक प्लेस होता है, ठीक है। नाउ प्रोजेस्टेरोन जो है वो नो रोल इन सेक्सुअल डेवलपमेंट, इसका कोई रोल नहीं है सेक्सुअल डेवलपमेंट में, लेकिन जो इसका फंक्शन है वो रिलेट करता है सेक्सुअल डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। वो क्या करता है, वो प्रिपरेशंस करती है यूट्रस, प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस फॉर द पॉसिबल रिसेप्शन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओव्यूम, मीन्स जिसमें हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूम हो उसके लिए प्रिपेयर करता है यूट्रस को, ठीक है। नाउ द हार्मोनल सिस्टम जो है हमारा रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मच सिंपलर इन द मेल, ये बहुत सिंपलर होता है क्योंकि देयर इज़ नो साइक्लिक पैटर्न। जो हमारे फीमेल्स में 28 डेज़ का साइक्लिक पैटर्न है वो मेल में नहीं होता, तो ये बहुत सिंपल होता है। जो टेस्टीज है मेल्स में वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को, जो कॉन्टीन्यूसली सिक्रीट होते हैं मेल में ड्यूरिंग द सेक्सुअल हार्मोन्स और कॉल्ड एंड्रोजन्स, ठीक है। लेकिन जब मेजर एंड्रोजन्स है दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन, एंड टेस्टोस्टेरोन प्रमोट्स सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस, वो बाकी के सेक्सुअल चेंजेस लाते हैं जो कि फिजिकल चेंज आता है, या ग्रोथ ऑफ फेशियल या बॉडी पे हेयर्स आने, ठीक है। एंड डीपिंग ऑफ वॉइस, आपकी वॉइस जो है बड़ी टफर हो जाती है। इंक्रीज ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेड बिहेवियर्स जो है आपके इंक्रीज होना, इंक्रीजिंग ऑफ एग्रेशन लेवल्स, आप कहीं देखोगे कई बच्चों में एग्रेशन लेवल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वो उसके लिए अब आपको पता है रीज़न क्या होना है, ठीक है। एंड अदर बिहेवियरलिस्टिकल और लिंक्ड अप टेस्टिमोनियल प्रोडक्शन से लिंक्ड अप किए जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि अगर आपका बिहेवियर है आपको जस्ट उसको कंट्रोल करना सीखना है, और वो हम साइकोलॉजी में सीख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल फंक्शनिंग जो है हमारी वो हार्मोन्स के साथ जो रिलेट कर रही है दैट इज़ रिलेटेड विद द crucial and over your behavioral well-being, how you've been behaviorally well परफॉर्मिंग। एंड विदाउट अ बैलेंस सिक्रीशन, अगर आपकी बैलेंस सिक्रीशन नहीं हो रही है किसी हार्मोन में, देन व्हाट विल हैपन, द बॉडी वुड बी अनेबल टू मेंटेन द स्टेट ऑफ इंटरनल इक्विलिब्रियम। Without the increase or without any secretion of these kind of hormonal changes is during the time of stress, you would be able to react effectively and even dangerously for the environment. So you need to know that the secretion of hormone over our life is very important, and it able to grow us, to mature us, and to reproduce, which is the major functioning of an human being. Okay, so you have understood about the hormones. You can go through a video of this relatively and also understand how it has been working up. Okay, thank you and have a nice day.